हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द लर्नर्स। पिछली बारी की तरह इस बार भी हमने अपनी ट्यूशन पे फिर से डिबेट कराया था और इस बार भी बच्चों का फीडबैक पिछली बारी से बेटर रहा। एक्चुअली जहाँ वर्क करना है वो है उनका ग्रामेटिकल जब वो बोलते हैं तो ऐसा होता है कि उनको पता है टेंसेस क्या होता है, उनको पता है कहाँ पे कंजंक्शन लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है, बट जब वो बोलते हैं, जब वो स्पीकिंग में आते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम अराइज करता है। तो ये अभी आप आगे मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा तो ये देखकर आप समझ पाएंगे कि आप अपने ट्यूशन्स में भी अपने बच्चों को कहाँ पे मदद कर सकते हैं। जो आपके स्टूडेंट्स होंगे वो मे बी कंजंक्शंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जितने भी ग्रामेटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच है एटलीस्ट उन पे अच्छा राइटिंग उनका होगा। मतलब अगर आप उनका टेस्ट लोगे तो वो इंडिविजुअली सबका टेस्ट अच्छा देंगे, बट जब बोलने पे बात आती है तो उस ग्रामर को जो लोग सीख रहे हैं उसको अपने स्पीकिंग में इम्बाइब नहीं कर पाते हैं। तो हमें यही बच्चों को सिखाना होगा कि किस तरह से जो ग्रामर सीख रहे हैं, जो वर्ब्स वर्ब्स के फॉर्म सीखते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5, फिर इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच सीख रहे हैं जो, एंड साथ ही जो हम लोग टेंसेस सीखते हैं तो उसको किस तरह से हम लोग अपने स्पीकिंग में इन्वॉल्व करें, किस तरह से हम अपने स्पीकिंग को एनहांस करें इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को बोलते समय यूज़ करके। तो चलिए आगे मैं आपके साथ वीडियो को शेयर करता हूँ। हमने इस बार डिबेट का टॉपिक रखा था ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग। The merchant buys everything and gives it to the weaver, and the weaver gives it back to the merchant, and merchant directly gives it to the exporter. Where is the government coming in? The government will not take tax that you No. are importing the herbs and you are taking the. Bro, you are exporting the traveling in the government's area. You are If exporting water and is your importing property, water is your property. International boundary is fixed. To that, the ship is traveling in the international boundary, water international boundary, and government will tax it. Okay, not sold it to the. Before seeing the goods, you can't see the goods in online. The Yes. goods come to You you. can't touch it. Wait, Bro. then you can check the goods, and then you can, if it is not good, you can. Bro, but in online shopping, Wait, let me complete. But when you buy, in this manner. wait. But when we buy anything in offline, we check the good before buying it. It is We not see the needed. quality, we see the quality, we see the price, we can bargain for the price. It is low. It can be more cheaper than online. as you said that you can bargain it and if the shopkeeper gives you the if you will bargain and if the shopkeeper gives you the Bad same quality thing products, you and in the online shopping there are mentioned that what the quality of product. If the quality of the product didn't match, In many, if the quality of the product didn't match, you can return or refundable it. That's Yes. why there is an option of refund. You can't see the product. But There it does only the quality is mentioned. There is not mentioned that the same thing will but come or many not. reviews are the fake. same in thing will, if many the same thing reviews will are not fake offer, they in will the- refund you. Yes. They So, will refund you. but So in a shop you buy the thing. It is in front of you. If the shopkeeper exchanges it, you won't see it. I also like to say that in online shopping if you have bought something and a very large something like you have bought a fridge and Bought. bought a fridge and you have bought a fridge from another country or from not in your state from far away from your home and then the delivery will also come but in online shopping the delivery amount is less and in the offline shopping if you bought fridge and the delivery charges money etc means large amount of money for delivering also. First of all, in offline shopping, if you buy heavy goods from a shopkeeper, they give you free delivery. Like you can buy it right now if you want it. But the money varies for your statement. Like if you buy something for a limited time, the money will be cheaper, and if you Bro, buy in the something middle class and it it will come to something, the quality will be the quality also matters, and the money will also go higher. That only I said. You in offline shopping, you see the quality. आप सभी ने देखा कि बच्चों ने कितने दमदार तरीके से ये डिबेट किया। इस बार का डिबेट भी अच्छा गया क्योंकि मैं बच्चों को टॉपिक एक दिन पहले ही दे देता हूँ और साथ ही मैं उनसे कहता हूँ कि वो गूगल की मदद से हेल्प ले और अपने पास में पॉइंट्स रखे। पॉइंट्स उनके पास में रहेगी तो उन्हें डिबेट करने में, अपने पॉइंट्स को सामने रखने में आसानी होगी क्योंकि उनके पास फैक्ट्स रहेंगे, उनके पास में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रहेगा। उन्हें बस कहाँ पे एफर्ट डालना होगा, अपने स्पीकिंग में, किस तरह से वो उन पॉइंट्स को सामने लाएं, किस तरह से वो अपने
ओपोनेंट पार्टी के सामने उस पॉइंट को रख पाएँ, उन्हें इतना ही करना होता है। कुछ एक आध बच्चे हैं जो कॉन्फिडेंटली नहीं बोलते, थोड़े से पीछे रहते हैं, बट थोड़ा सा पुश करने से वो भी बोलेंगे। तो आप भी इसी तरह से ट्राई कीजिए, डिबेट्स वगैरह कराते रहिए, डिबेट्स कराइए, स्पीचेस कराइए, और इस तरह के जितने भी स्पीकिंग के प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं वो सब आप बच्चों को कराइए। इनसे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपको भी अच्छा लगता है, बच्चे भी इसे एंजॉय करते हैं। एक बार दो बार वो करेंगे, फिर वो खुद ही से इंटरेस्ट से बोलेंगे कि सर डिबेट। मैंने खुद बच्चों को देखा, बच्चे बोलते हैं सर डिबेट था, आज तो डिबेट है। कभी कभी टाइम की वजह से हम लोग कर नहीं पाते, क्योंकि हमें थोड़ा सा अब सिलेबस पे फोकस करना है, क्योंकि बच्चों का रिजल्ट्स हो गया है, कुछ बच्चों का रिजल्ट्स हो गया है एंड उनके बुक्स आ गए हैं, तो हम लोग उधर भी काम कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हम लोग स्पीकिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग साथ मिलकर बच्चों को स्पीकिंग के लिए एक अच्छा प्रैक्टिस दे सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड इसी तरह से सीखते रहिए एंड सिखाते रहिए, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द लर्नर्स। थैंक यू।